Hello. Good morning, everyone. And once again, Happy New Year to everyone. In the last class, we have discussed regarding how to find rank of matrix, how to find inverse of a matrix, what is the meaning of consistency, inconsistency of matrices, and how to find the solutions when there will be a solution will exist for a linear equation or when it will not be existing. Before moving towards next topics, I will be discussing few of the problems which have already came in GATE in last previous years. So moving forward, so today's first question which I am discussing about is, before that, I will be starting with few of the points which I missed in the last class, so which I am writing as a note. First point, that is determinant of AB, it is equal to determinant A, determinant B. Second point is, if someone asks you AB inverse, then AB inverse is B inverse, A inverse. Third one is, if suppose someone is asking like ABC inverse, then ABC inverse is C inverse, B inverse, A inverse. These 3 points one should keep in mind whenever we are doing determinant or when we are finding the inverse of the matrices. So moving to our problems today, as I said, initially I will be discussing about some of the problems. So first of the problem which I am discussing now, it has came in the year is GATE 2008 question. Question was, the product of matrices PQ inverse P each, and the value given is, options are P inverse, Q inverse, P inverse, Q inverse, P, and D is PQ, P inverse. So let's solve this question. 1 minute. Actually, here it is. Question, I have written something wrong. It is PQ whole inverse. PQ whole inverse. So how the solution will come? As per this formula, AB inverse is equal to B inverse A inverse. So PQ inverse will what will be PQ inverse? It will be Q inverse P inverse. Now what the original question is, PQ inverse into P. So it is equal to Q inverse P inverse P. And yesterday I said, if a matrix is multiplied with an inverse, the value is equal to I. So this value becomes Q inverse I, and multiplying something with I, you will get the same thing. So the option correct is B. Okay. Another question which I am discussing now, which has came in GATE. It is in GATE 2004. They have given one matrix 8 x 0 4 0 2 12 6 0. What is the value of x such that this given matrix is singular? This is the question. Options are 4, 6, 8, and 12. So moving to the solution. If a matrix is set to when it is singular, if the determinant is equal to 0. So determinant of 8 x 0 4 0 2 12 6 0 should be equal to 0. So we will be operating along this column.
Why we are doing so? Because here and here we are having two zeros. Yesterday in the class I have already explained that whenever we are finding determinants, we should either can follow the shortcut method, or we can opt for a row or a column which is having maximum number of zeros. So here I'm opting this one. So it will coming to be minus 2 in the bracket, 8 into 6 minus 12 into x, and this should be equal to 0. So it is equal to minus 2 in the bracket, 8 6 is 48 minus 12x. So x is equal to 4. So your answer is A. ठीक है. Next question. One more question. It's in GATE 2015, recent year questions only. 2015 or 14 it has come. For 15 also similar type of question has already came. What they have given? They have given a determinant of 1 3 0 2 6 4 minus 1 0 2. The determinant of this is minus of 12. So they are asking determinant of this matrix 2 6 0 4 12 8 minus 2 0 and 4. How we can calculate this one? Simple. If you will see this matrix, if this is A, then and this is B, then basically what B is, what we have done, see, in this row we have multiplied 2, in this row we have multiplied 2, in this row also we have multiplied 2. So yesterday I said, given when I have explained regarding property of determinant, I have explained this thing, that if we are multiplying with a constant in each row or column, then in that case, take that column, that constant out and put the order of that one. So here what is B? B is nothing but it is 3 into A in terms of matrices I am saying. Scalar multiplication. तो हमने क्या किया यहाँ पे 3 से हर जगह, sorry, not 3, it is 2. Sorry, this is 2. So हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक रो में. सो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 2 की पावर n यहाँ पे 3 हो गया. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा? वो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो -12. कितना हो गया? 8 इंटू -12 एंड दिस कम्स टू बी -96. तो इस तरीके से हम शॉर्टकट के थ्रू अपने आंसर्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास क्या हो, फॉर्मूलेस पता हो, हमें प्रॉपर्टीज पता हो, तो हम इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं. क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ये ईसी गेट 2014 का है. क्वेश्चन है, the maximum value of the determinant among all the 2 cross 2 real symmetric matrices with trace 14 each. चलिए, अभी ट्रेस उस दिन मैंने बताया था सबसे पहली क्लास में अपने कि ट्रेस क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल का सम. सबसे पहले हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है. तो 2 क्रॉस 2 है तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ए इज इक्वल टू मान लेते हैं ए एक्स एक्स. क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि इसने बोला एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? उसका ट्रांसपोज बराबर होगा, इसीलिए हमने प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सेम एलिमेंट रखे. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, a प्लस बी हमें 14 दे रखा है और कहता है हमें डिटर्मिनेंट a निकालना. डिटर्मिनेंट a क्या होगा? डिटर्मिनेंट a हो जाएगा ab माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या कहता है? वो कहता है मिनिमम होनी चाहिए. तो मिनिमम के लिए
का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मिनिमम। और उससे पहले हम यहाँ से एक वैल्यू, हाँ मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है, हम डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू 0 पुटअप करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। सो दैट इज डी ए बाई डी एक्स should be equal to 0, and then we will check d2a by dx square should be greater than 0 होगा तो मिनिमम कहलाएगी वैल्यू, और अगर ये लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम कहलाएगी एट दैट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सो हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। a प्लस बी हमारा क्या था, यहाँ पे 14 था, किसी एक टर्म में रख लेते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 माइनस a हो गया। सो डिटर्मिनेंट a हो गया हमारा a इन द ब्रैकेट 14 माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। 14 माइनस a। ठीक है, अब एक चीज अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, एक और चीज बोली है कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए, रियल सिमेट्रिक वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए, रियल सिमेट्रिक वैल्यू चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। अगर हम क्वेश्चन को पीछे जाकर देखें तो यहाँ देखो रियल सिमेट्रिक वैल्यू चाहिए। तो इस बात को अगर हम समझें, रियल सिमेट्रिक वैल्यू कब आएगी, एक बात समझे, ये एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर हमें पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये कब मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ये कब मिलेगी, जब ये 0, क्यों, क्योंकि हमें क्या बात कर रही है, हमें बात कर रही है डिटर्मिनेंट ए की मैक्सिमम वैल्यू की। अगर आप यहाँ पे वैल्यू 1 भी रखोगे तो इसमें से कुछ भी घटा दोगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या लगा, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव देन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए एक्स शुड बी इक्वल टू 0, एक्स 0 होना चाहिए। तो अगर एक्स 0 हो गया तो इसका मतलब a इन द ब्रैकेट 14 माइनस ए की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी मैक्सिमम, a माइनस 14 है, इसका मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू a, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये हो गया 14a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आइदर a इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी ए से, तो सॉरी मैंने डिफरेंशिएट की बिना वैल्यू लिख दी थी। सो डिफरेंशिएशन अगर हम इसका करते हैं हमें वैल्यू मिलती है 14 माइनस 2a इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 7। चेक कर लेते हैं क्या इसकी वैल्यू नीचे वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं। तो d2a बाई डी ए स्क्वायर, d2a बाई डी ए स्क्वायर क्या आएगा हमारा, इट विल बी 14 तो 0 हो जाएगा, माइनस टू इज 0, कि किस पे आया हमारा, व्हेन a की वैल्यू 7 है। ठीक है, राइट। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू of determinant A is equal to 14 into 7 minus 7 का स्क्वायर, and this comes out to be your 49 आंसर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे से बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आया है जो उसको भी देखना चाहेंगे हम, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा, वो आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसमें दे रखा है कि ए बी सी डी की वैल्यू आई है, चलो क्वेश्चन ही हम लिख देते हैं नहीं तो पूरा,
जो गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन आया गेट में, लेट ए बी सी डी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इनका इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। इफ ए बी सी डी इज इक्वल टू आई, देन व्हाट इज बी इनवर्स। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसमें इन्होंने। पहला ऑप्शन है डी इनवर्स, सी इनवर्स, ए इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा सी डी ए। तीसरा ऑप्शन है हमारा ए डी सी। और चौथा ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो उन्होंने दिया हमें ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू आई। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। चलिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए बी सी डी, मैं पहले डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, आई डी इनवर्स। तो देखो, तो ये तो हो गया ए बी सी, ये तो आई बन गया, तो यहाँ हो गया ए बी सी इक्वल टू डी इनवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी में सी इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, अभी सी इनवर्स सी इनवर्स वी वन हो गया, तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू डी इनवर्स सी इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए से। अब ए हमें चाहिए, तो हम ए के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए ए इनवर्स ए, सॉरी मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, वरना यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है। कलर चेंज किया, इस जगह पे लिख रहा हूँ, शायद दिखेगा आपको। तो इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया। मैंने राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन किया ए इनवर्स है दोनों साइड, तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू हो गया ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स। अब देखिए, जैसे ही आपने ए इनवर्स ए किया, ये तो हो गया आई, बच गया बी की वैल्यू आ गई ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बी इनवर्स चाहिए, तो हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा, तो हम लगा देंगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स मतलब इस पूरे का इनवर्स, ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स का इनवर्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो सी, अब हम उल्टा लिखते हैं, सी इनवर्स का इनवर्स, डी इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स का इनवर्स सी, डी इनवर्स का इनवर्स डी, ए इनवर्स का ए इनवर्स ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ओके ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हम थोड़ा सा इसको रिकैप करें, तो हमारी इक्वेशन थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। ये था हमारा। अब देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी, ए एक्स, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी। सो इफ, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी हमारा जीरो हो गया, देन सच इक्वेशंस आर सेट टू बी, homogeneous equation। That is, homogeneous equation क्या हो जाएगी, ए एक्स इक्वल टू जीरो। वहीं, वहीं
if B is not sorry, if B is not equal to 0, then such linear equations, such system of linear equations are called non-homogeneous equation. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में। अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं, अगर बी की वैल्यू 0 नहीं है तो उसको नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। साथ ही साथ कल मैंने एक चीज और भी बताई थी, वो क्या था? साथ ही साथ मैंने एक चीज बताई थी, वो था हमारा, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। 3 केसेस मैंने दिए थे। केस वन बोला था कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर है नंबर ऑफ आपका एन के, मतलब एन क्या था? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो उसको क्या कहा था मैंने? कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। दूसरा केस कहा था मैंने, अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो बट वो कम हो किसके? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब भी ये कंसिस्टेंट होगा। बट इस केस में हमारा इक्वेशन कैसी थी? इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली थी। ठीक है, केस 3 मैंने बोला था, अगर रैंक ऑफ ए नहीं बराबर है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। राइट, तो ये तो मेरा कल का जो अभी तक मैंने डिस्कशन किया था उस चीज का मैंने एक रिकैप कर दिया, ताकि जिन्होंने भी आज नया ज्वाइन किया है वो इस चीज को एक बार रीड कर सकें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करा। ठीक है, पहले सिंपल सिंपल से करते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम गेट के कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे सॉल्व करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। हमें देखना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलो भाई, हम लिखते हैं सी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी। मैंने बताया था कल क्या करना है आपको, पहले कोफिशिएंट ऑफ इट, क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को नोट आउट करना है इन रोज। तो 1 1 1, फिर दूसरा है 1 2 3, तीसरा है 1 2 सॉरी इट्स 1 4 एंड 9। यहाँ पे क्या है? बी को भी यहीं पे लिखते हैं 3 4 6। हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? एक्लॉन फॉर्म यूज करेंगे। एक्लॉन फॉर्म में हम, अगर यहाँ पे 1 है तो उसके नीचे वाले को 0 बना देते हैं। 0 कैसे बनेगा? R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R। जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो कर दो, 0 0 हो गया। फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, उसको ऐसे का ऐसे रख दिया। चलिए भाई, तो अभी हम यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8 एंड 6 माइनस 3। हमारी मैट्रिक्स ये बन गई। और कुछ कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं क्या हम और कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इसको हम 0 बना सकते हैं। अब इसको 0 बनाने के लिए मैं लिखता हूँ, चलो भाई, तो मैं लिखूंगा, नेक्स्ट वाले पेज में चलता हूँ। सो मैं यूज करूंगा, कलर चेंज कर दिया मैंने, और मैंने यूज किया R3 टेंड्स टू R3 माइनस, अगर मैं पीछे पेज पे जाऊं, R3 माइनस, मुझे ये 0 बनाना है, 0 बनाना 3 कर देता हूँ मैं, 3 R2। सो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा वापस। हमें चेक करना है कि बस वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो 1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1 3, क्योंकि पहले रो में कोई चेंज नहीं था, दूसरे रो में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 2 1 0 1 2 1। हाँ, अब इसमें चेंज आएगा हमारा 0 3 8 3। सो 0 3 8 3, तो 0 माइनस 0 0 रहेगा।
3 माइनस 3 ये हो गए 0। अब यहाँ पे था हमारा पीछे वाले में देखें तो यहाँ था 8, अब 8 माइनस 3 टू जा 6, यहाँ पे गया 2, ये हो गया 3 माइनस 1 इंटू 3 3, यहाँ पे भी 0 हो गया। जरा ध्यान से देखेंगे अब इससे ज़्यादा हम इसको छोटा नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी मैंने बताया था कल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3, 3 है तो रैंक ऑफ सी तो हो गया 3। अच्छा रैंक ऑफ ए, ये नहीं कि दोबारा नहीं निकालनी, यहीं से देख सकते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सी, जरा मैं उसको ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, यही तो ए मैट्रिक्स है हमारी, यही पूरी मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स है, राइट। जरा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे भी 3 है। वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। तो क्या आया, हमने क्या पाया कि रैंक ऑफ सी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। किस टाइप का हो गया, यूनिक सोल्यूशन वाला हो गया। क्लियर है, आई होप आई थिंक आपको क्लियर होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी तो कैसे पहचानेंगे वो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद जो गेट में आए हुए हैं उनको देखेंगे। अब की बार हमारे पास मैट्रिक्स है 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 0z इक्वल टू 4, 10y प्लस 3z इज इक्वल टू -2, देन 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। हमें इसका सोल्यूशन करना है। चलो भाई, सबसे पहला काम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखता हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, हमें अपने पहले जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी इक्वेशन वैल्यूज को लिख देते हैं। 3 3 2, वेरिएबल्स के सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने लिखनी सॉरी पूरी, 1 2 0 0 10 3 एंड 2 -3 -1। इसके बाद यहाँ पे भी अरेंज किया 1 4 -2 एंड 5, राइट। ये हमारी मैट्रिक्स अरेंज हो गई, राइट। सबसे पहला एम क्या होता है, हमारा एम होता है इसे 1 बनाना। एक तो तरीका है कि हम इसको डिवाइड कर दे 3 से, बट डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे 2/3 1/3 बहुत टिपिकल टफ हो जाएगा इसको सॉल्व आउट करना। तो हम क्या करते हैं, R1 R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक पेज ऐड करेंगे, मतलब हमने क्या किया, चेंज किया R1 और R2 को इंटरचेंज मार दिया। तो अभी सी मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी, देखेंगे सी मैट्रिक्स हमारी बन गई 3 1 2 0 4 1 2 0 4 3 3 2 1 3 3 2 1 0 10 माइनस 0 10 3 -2 2 -3 -1 5 2 -3 -1 एंड 5। ओके, अब हमें ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको और इसको 0 बना देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कन्वर्जन लगाया मैंने, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 2R1। सो C इज इक्वल टू, अब इस केस में हमारा हो जाएगा पहला वाला रो तो कोई चेंज नहीं करना, उसको वैसे कैसे सबसे पहले उतार दिया, 3 में से 3 किया 0, 3 -3 टू 6 -3, फिर 2 -0 2 1 -12 दैट इज -11, देन ईयर 0, ईयर 0 is 0, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया, 0 10 3 -2। ओके, ईयर यू सी 2 -2 0, ओके -3 -4 -7 and -1 0 -1 only and 5 -8 it's -3। सो अगर अब हम देखें तो मैं इसको एक छोटा सब मैट्रिक्स बनाता हूँ। इसका सबसे छोटा सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसकी छोटी सब मैट्रिक्स बनेगी -3 2 -11 10
3 -2 -7 -1 -3। अब अगर आप देखो तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सबसे जो सब मैट्रिक्स लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है वही क्या कहलाता है, रैंक। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, राइट। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 आ गया। तो अगर 3 और 3 ही कितना है, इनके बराबर, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, यूनिक हो जाएगा। कैसा है, कंसिस्टेंट है। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स अब देखते हैं जो गेट में ऑलरेडी आए हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है, कंसीडर अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब बी की वैल्यू हमारी जीरो नहीं है। रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकली एन ओवर डिटरमाइंड system। Such a system will be। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन। दूसरा, कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। सी, इनकंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन। डी इज inconsistent having no solution। तो ये तो इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमें जो गेट में आया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो बी की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। अब ओवर डिटरमाइंड सिस्टम है तो देखो ओवर डिटरमाइंड है तो अभी हमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओवर डिटरमाइंड सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे कि अभी हमें पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, इसका मतलब कि जितने वेरिएबल्स हैं उससे ज्यादा हमारे पास इक्वेशन है। तो उस केस में क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन हो सकता है भाई। हो सकता है रैंक छोटी हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, नो नो नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता इनकंसिस्टेंट हो और यूनिक सोल्यूशन भी हो, नॉट पॉसिबल। हाँ, इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सोल्यूशन भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसका सही ऑप्शन है ए, बी एंड डी। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का सोल्यूशन है। सही है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देता है, क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ alpha and beta the given set of equation has an infinite number of solution इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 9, x प्लस
2y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू बीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन हमने बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C 1 1 1 5 1 3 3 4 1 2 अल्फा एंड बीटा। अब देखो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है कि रैंक ऑफ C रैंक ऑफ A के तो बराबर हो, बट ये कम हो किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में। तो हमें इसी बेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर इक्लॉन फॉर्म लगाते हैं, इसको इसको जीरो बनाते हैं, तो हमारा सोल्यूशन लगेगा इस पेज में यहीं पे लिखते हैं। हमारा सोल्यूशन है R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। तो हमारा ये हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा देखते हैं। पहले रो तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो 1 1 1 एंड 5। चलिए भाई, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। 3 में से 1 गया 3, से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 5 गया -1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे अल्फा -1, यहाँ पे बीटा -5। अभी मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ। इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू R3 माइनस, वहां पे 2 है नीचे 1 है, तो 1/2 R2। चलो भाई, तो C अभी क्या बन जाएगा जरा देखो। फर्स्ट रो वैसे 1 1 1 5, तो 1 1 1 5 0 2 2 2 1 0 2 2 एंड लास्ट वैल्यू वाज -1। ओके -1। अभी चेंज होगा, जीरो में से जीरो गया जीरो ही रहेगा। यहाँ पे 1 1 -1 जीरो हो गया। यहाँ था हमारा अल्फा -1 अल्फा -1 -1, तो अल्फा -2 हो गया ये, राइट। ओके। अच्छा, एक चीज मैंने क्वेश्चन में गलत, यहाँ पे गलत, ये 9 है एक्चुअल में। ये 9 है तो यहाँ पे भी 9 आएगा। ये 9 होगा तो 9 -4, ये 5, ये यहाँ पे अब 4 हो जाएगा। ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। सो चलो, तो अभी ये हमारा, इसको थोड़ा सा सही कर दो इरेज करके, और दोबारा लिख देते हैं, दिस इज 4। सो जरा देखें, तो बीटा हमारा आया था बीटा -5, और बीटा -5 -2 बीटा -7। अब देखिए, हमारा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर होना चाहिए, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3 से तो कम होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब 3 से कम कब होगा, जब ये वाली पूरी की पूरी रो क्या हो जाए, हमारी जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगी, जब अल्फा -2 की वैल्यू जीरो हो और बीटा -7 की वैल्यू जीरो हो। सो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 7 आर द सोल्यूशन टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2 और 7। ओके, इस तरह से क्वेश्चन गेट में आते हैं, जहां पे हमें कोई एक कांस्टेंट गायब कर देगा और सोल्यूशन को पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह। देता है, एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस kz इज इक्वल टू 6। ये हमें इक्वेशन में वैल्यू दे रखा है। वो कहता है k की वैल्यू बताइए जिसके लिए यहाँ पे नो सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन ना हो, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। नो सोल्यूशन हो, या सॉरी, नो सोल्यूशन नहीं बोल के, सॉरी, मैं जो क्वेश्चन बोलता है वो बोल देता हूँ। और व्हाट वैल्यू ऑफ के और व्हाट वैल्यू ऑफ के this set of equation will not have unique solution। वैसे सीधी सी कहानी है, तो दो कंडीशन लगा सकते हैं हम इसमें। कौन कौन सी,
पहली तो हो सकती है कि रैंक ऑफ सी के बराबर हो बट एन से कम हो, और दूसरी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर ना हो। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आता है। तो चलो करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे सी इज इक्वल टू 1 1 1 3 1 2 3 and 4 and 1 4 k and 6। अपना एम वही है, एक्लॉन फॉर्म लगाएंगे। सो हमारा एक्लॉन फॉर्म हम लगाते हैं यहाँ से। सो एक्लॉन फॉर्म पे सॉल्व करेंगे। सो हमारा हमने लगाया क्या ट्रांसफॉर्मेशन, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। चलो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, इससे C क्या बन जाएगा, अब C हो जाएगा 1 1 1 3। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, K में से 1 गया K माइनस 1, 6 में से 3 गया 3। अभी हम इसको भी 0 पहले बना देते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमने लिखा R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R2। अब मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 1 1 3। तो C की वैल्यू है 1 1 1 3, 0 1 2 1 0 1 2 1। ठीक है, सो दिस इज 0, 3 माइनस 3 0 हो गया, K माइनस 1 माइनस 3 टू 6, तो K माइनस 7 आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 3 अगेन 0 हो गया। सो जरा देखो, जरा देखो, अब पहला कंडीशन, अगर हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर हो बट एन से कम हो, या दूसरा नो सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो देखो, अगर k माइनस 7 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 7। अगर नॉट इक्वल टू 7 होगा, वैसे तुरंत क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे ही k माइनस 7 0 हुआ, सोल्यूशन यूनिक नहीं रहेगा। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू 7। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके को क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी काफी अच्छा है, मैकेनिकल में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है A is a 3x4 matrix and AX equal to B is an inconsistent system of equations। कहता था हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए। ऑप्शन दिया है हमें, ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो भाई सीधी सी कहानी है, क्या रैंक की कंडीशन क्या होती है, इट इज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, राइट। अब m और n में छोटा क्या है, 3 है, तो रो ऑफ रैंक ऑफ ए लेस और इक्वल टू तो 3 होगा, 3 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो पहले तो ये तो सोल्यूशन यही खत्म हो गया। ओके, अब वो कहता है जो हमारी इक्वेशन ax इक्वल टू बी है, ax इक्वल टू बी है, वो वो इनकंसिस्टेंट है। ये ax इक्वल टू बी है, वो इनकंसिस्टेंट। अब एक चीज और,
इनकंसिस्टेंट कब हो सकती है? जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो, और अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर हो गया, उस केस में तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? अब देखो मैक्सिमम ये तो 3 हो सकती है, बट अगर 3 हुई तो सी भी 3 हो सकता है। तो उस केस में कंसिस्टेंसी होने के चांसेस क्योंकि ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो एन के बराबर हो जाएगा। बट हाँ, अगर रैंक ऑफ ए 2 हो जाए तो चांसेस हैं कि उस केसेस में वो इनकंसिस्ट नॉट इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हो। तो इसीलिए हमारा हाईएस्ट पॉसिबल जो रैंक हो सकता है वो ये ऑप्शन है, दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ एक दो टॉपिक और मैं आगे कवर अप करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, अभी जो मैंने मेथड बताया, हमारा मेथड को मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, वो था मैट्रिक्स मेथड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। हमारे पास एक और मेथड है, लगाने की जरूरत नहीं है, बट मेथड का नाम है क्रैमर्स रूल। ये डिटर्मिनेंट मेथड है। अभी क्रैमर्स रूल में हम करते क्या है, तो देखेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है। देखिए, जो भी हमें कांस्टेंट मान लेते हैं, हमारा कांस्टेंट एक्स था जैसे, और वाई था और जेड था, तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या रख करते हैं, एक्स इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बाई ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी वन बाई ए, डिटर्मिनेंट ऑफ सी वन बाई ए। तो ए वन क्या हो जाएगा समझेंगे। ए वन क्या है, अब भाई डिटर्मिनेंट ए तो हम सबको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a1 निकालना पड़ेगा। अब a1 में क्या है, जिस जिस भी वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे x वैल्यू निकालनी है तो x हमारा क्या है, पहला कोफिशिएंट है, क्योंकि ax इक्वल टू बी लिख रहे हैं तो उसमें हमने x क्या माना है, एक्स वाई जेड, सबसे पहला एलिमेंट माना है x को। जहां जहां जो x के कोफिशिएंट है उसको चेंज कर दीजिए, कैसे, कुछ इस तरीके से। वहां पे आप b लिख दीजिए, तो d1 d2 d3 लिख दीजिए, b1 b2 b3 लिख दीजिए, c1 c2 c3 लिख दीजिए, तो ये तो a1 हो जाएगा। सिमिलरली किसी ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पूछा तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू में क्या करना है भाई, हम y की वैल्यू निकालना है, तो y कहाँ पे आता है, सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड वाला कॉलम का सबको चेंज कर दिए कोफिशिएंट से, तो ए वन ए टू ए थ्री, इसकी जगह हम b ला देंगे, ये हो जाएगा डी वन डी टू डी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ये भी एक तरीका है। और z के लिए हमें z निकालना था, z में हमारा ए थ्री आता है, तो ए थ्री भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। अब समझ में आ रहा होगा, ए थ्री में क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कॉलम चेंज हो जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, एंड देन D1 D2 एंड D3। तो ये हमारा क्या है, क्रैमर्स रूल है। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मेथड से, या हम कहें तो मैट्रिक्स मेथड की बात करें, या फिर हम बोलें कि क्रैमर्स रूल से सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक और बात करें कि यूनिक मेथड में हम सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो देखिए सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इनटू, आपको अपने मैट्रिक्स का इनवर्स करना होगा अगर यूनिक सोल्यूशन है, और तब आप बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस की। हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस की। मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिसमें b की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। तो देखिए अब इसमें सोल्यूशन क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला ट्रिवियल सोल्यूशन, दूसरा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अभी ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, तो ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है,
एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सभी के सभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, मतलब x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो, सिर्फ और सिर्फ यही एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। वहीं अगर आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए हमको, क्वेश्चन में कहता है आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालिए, ध्यान रखेंगे उस समय जो आपका मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, उसमें जो आपका मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है गेट में। क्वेश्चन आया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इक्वेशन दिया हमें लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस 4 लैम्डा y प्लस लैम्डा z इक्वल टू जीरो, एंड देन माइनस 4x प्लस 18y प्लस 7z इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन है हमारे पास, ऑप्शन है -3, 1, -1, 3, -1, -3, 1, 3। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं। बाय नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा यहाँ पे, जरा देखते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, तो लैम्डा 3, 5 फर्स्ट रो में आ जाएगा, सो लैम्डा 3 एंड 5। सेकेंड रो में आ गया 2 माइनस 4 लैम्डा लैम्डा, सो 2 माइनस 4 लैम्डा लैम्डा, एंड लास्ट वन -4 -4 18 एंड 7, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सो आपके ऊपर है, आप जो मेथड लगाना उस मेथड को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपका जो नॉर्मल मेथड मैंने बताया था उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। सो शॉर्टकट वाले से लैम्डा 2 -4 3 -4 लैम्डा 18 5 लैम्डा 7 लैम्डा 2 -4 3 -4 लैम्डा 18। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि हमारे पास इक्वेशन कैसी बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो 7 4 जा -28 लैम्डा स्क्वायर, कलर चेंज किया मैंने, क्या आ रहा है पहला मल्टीप्लीकेशन -28 लैम्डा स्क्वायर, फिर 3 इंटू -4 -12 लैम्डा आ रहा है, -12 लैम्डा, 18 टू 36 36 इंटू 5 इट्स इज 180 प्लस 180। तो ये तो हो गया पहले वाले से, फिर माइनस में डालते हैं, ओके, सो इट इज नथिंग बट 3 2 जा 6 6 7 जा 42 प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस -4 इंटू -4 प्लस 16 इंटू 5 16 का जो 80 लैम्डा आ गया, प्लस 80 लैम्डा, इट इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो हमारा हो गया -28 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर, that is equal to coming out to be -46 lambda square, -12 lambda -80 lambda, it's coming out to be -92 lambda, plus 180 -42, plus 180 -42 will come to be how to be 138 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर हम देखें तो इसमें से हम आपका 46 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 46 कॉमन लिया, -46 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, लैम्डा स्क्वायर 2 + 2 लैम्डा और 2 लैम्डा 3 6 18 3 4 12 प्लस -3 इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर
plus 3 lambda minus 1 lambda minus 3 equal to 0. So lambda plus 3 minus 1 comma lambda plus 3 equal to 0. So lambda is equal to minus 1 and sorry lambda is equal, so हमारा फैक्टर्स बन गए लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0. सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 3. सो हमारा सोल्यूशन हो गया माइनस 1 कॉमा सॉरी 1 कॉमा माइनस 3. सो 1 कॉमा माइनस 3, दिस वन इज द राइट सोल्यूशन. क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास ये सेट्स ऑफ इक्वेशंस पे क्वेश्चन आते हैं. एक और क्वेश्चन देख सकते हैं. क्वेश्चन दिया है सेम वही है y प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ax प्लस 2y इक्वल टू 0. बताना है एक ही किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. आपके ऑप्शंस दे रखे हैं a 8, b माइनस 8, c 7 एंड d माइनस 7 सोल्यूशन. चलिए सो वापस वही सी मैट्रिक्स बना लेते हैं. तो सी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बना लेते हैं. ए इज इक्वल टू 0 1 and 2 and 2 and 1 and 1 and a 2 and 0. दिस इज इक्वल टू 0. आपको इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं. हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं. यहाँ पे एक ऑलरेडी 0 है, तो जो हो जाएगा माइनस 2 इन द ब्रैकेट माइनस 4. ओके राइट. हाँ 0 1 0 माइनस 4 राइट. फिर प्लस a in the bracket 1 minus 2 equal to 0. So what a is coming out to be? A is coming out to be 8. So correct option is 8. ठीक है. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं. कोई दिक्कत? ओके. कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो. जो मैंने पीछे के टॉपिक्स में भी कराए हुए हैं उनको एक बात एक चीज के लिए देख लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है इस टाइप का. कहता है क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 3 माइनस 1 2 4 1 के. कहता है रैंक ऑफ ए आपका 2 है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी. सिंपल वही तरीका है, इक्लॉन फॉर्म लगा दो. इक्लॉन फॉर्म में R3 टेंड्स टू R3 माइनस 4R1 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1. सॉल्व कर दो. 1 2 एंड 3. 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0. माइनस 1 माइनस 4, सो ये माइनस 1 एंड थिंक माइनस 1 एंड 2 जो माइनस 4, 2 जो माइनस 4. ठीक है. माइनस 1 एंड सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ गलत लिख दिया है. ठीक है. माइनस 1 माइनस 6, सो इट्स कम आउट टू बी माइनस 7 एंड 2 माइनस 9, it is also minus 7. Then 1 minus 8, 1 minus 8 is again minus 7 and then k minus 3 9. अब इसको भी जीरो कर देते हैं. उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए हमें इस टर्म को जीरो बनाना पड़ेगा. ठीक है. इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R3 टेंड्स टू लिख देते हैं R3 माइनस R2. चलिए R3 माइनस R2 किया तो हमारे पास बन गया 1 2 3 0 माइनस 7 ये हो गया 0, ये भी 0. अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो राइट सही कर रहे हैं ना.
सॉरी यहाँ पे था 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 4 से जब हम अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से 12 आ जाएगा। सो 12 अगर आता है तो ये हो गया k माइनस 12। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। हाँ, सो ये हो जाएगा R3 12 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये हो जाएगा k माइनस 5। अब वो क्या चाहता है, रैंक ऑफ A2 है। रैंक ऑफ A2 कब होगा, जब ये पूरी की पूरी रो आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, k माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 5 इज योर आंसर। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे गेट में आए हुए हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। So in this lecture, so far I have discussed what is the rank of matrix and several other questions are regarding consistency and inconsistency. In the upcoming lectures, I will be discussing about the most important topic, that is eigenvalue and eigenvectors. Thank you all, and request you all to please like, share and subscribe for motivating me to make such videos more. Thank you.